Hello everyone, welcome to Tamil tutorial. Wishing you all a very happy new year. I hope this year will bring lots of happiness and success in your life. So in last class we had discussed the basic concept of soil mechanics, in which we had discussed various types of soils, their properties and their formation process. Also we had discussed the syllabus of various examinations. So in this class we will discuss the phase diagram of soil and various index property of the soil. So let's start the lecture. What is phase diagram? It is a separate representation of solid, liquid and gases and also termed as block diagram. तो फेज डायग्राम क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और वाटर को अलग अलग सेपरेटली दिखाना, उसको डायग्राम को फेज डायग्राम कहलाता है. ये थ्री फेज डायग्राम है in which we have separately described air, water and solid. So in actual condition all are mixed together, water, air and soil particle. So this is an actual condition, but it is practically it is not possible. So theoretically we have separated it in three forms. So left side you can see the volume, right side weight. So volume of solid, volume of water and volume of air, and this side weight of air is 0, then weight of water and weight of solid. So what is V? Is total volume. V is total volume. So total volume of consist क्या? Volume of solid plus volume of water plus volume of air. But total weight will be volume of solid plus volume of water. This portion is considered as volume of void, in which air and water is filled. So this is all our soil solid particle. तो सॉलिड पार्टिकल, इनमें कोई भी गैप नहीं होगा, बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा. तो इसमें जो स्पेस है उसको हम सेपरेटली यहाँ पे दिखा रहे हैं. इस सेपरेट स्पेस को, ये पूरा स्पेस जो है, ये कहीं कहीं एक्चुअल में ये बीच में होगा. ऐसा ये इधर पे लेफ्ट वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं. तो इस स्पेस को हमने सेपरेटली ऊपर दिखाया है. तो ये टोटल क्या हो जाता है? वॉल्यूम ऑफ वाइड. तो वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस volume of water plus volume of air, that is called volume of void. अभी हमने पिछली स्लाइड में थ्री फेज डायग्राम देखा. तो यहाँ पे क्या है? हमारा टू फेज डायग्राम है. अब टू फेज डायग्राम में क्या होता है? या वाटर नहीं होगा या एयर नहीं होगा. सो हाउ इट इज पॉसिबल? इन ड्राई स्टेट, इफ सॉइल इज completely dry, there is no water, then only air and solid will be there. So this will be considered as dry state. In saturated stage, soil is filled fully with water, fully filled with water. So यहाँ क्या है? जितना भी voids है soil में वो पूरा water के थ्रू भरे हुए हैं, और solid तो अलग है ही. तो इन दोनों कंडीशन को हम बोलते हैं, ये टू फेज डायग्राम होता है, जिसमें एक कोई नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड या तो पूरा एयर के थ्रू फिल होगा या फिर सॉलिड वाटर के थ्रू फिल होगा. सो ये हो गया हमारा टू फेज डायग्राम. और हमको पता है वेट ऑफ एयर 0 होता है, तो वेट ऑफ वाटर हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे सैचुरेटेड स्टेट में. इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल. Those properties of soil which are used to identify and classification of soil is known as index property of soil. तो क्या है? जो सॉइल का हमको आइडेंटिफाई और क्लासिफिकेशन करने में हेल्प करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स प्रॉपर्टी बोलते हैं सॉइल की. ये कौन कौन सी होती हैं? वाटर कंटेंट, यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, कंसिस्टेंसी, सेंसिटिविटी, thixotropy, activity and collapsibility. So we will discuss one by one. So we will start with, before starting these index property, we should know some basic concept or basic definitions which will be required to identify these index property. So we will start with
void ratio. So it is the ratio of volume of void to the volume of solid. Thus it is expressed as a decimal and denoted as E. तो void ratio क्या होता है? Soil में available voids और solids का ratio को हम void ratio कहते हैं. तो void ratio never be zero. कोई अदर मीडियम है सॉइल के अलावा, उसमें void ratio 0 हो सकता है, बट इन सॉइल void ratio can never be equal to 0. It's always greater than 0. Because if void ratio 0 होता है सॉइल में, तो ये क्या स्टील के जैसा हो जाएगा. स्टील में void ratio 0 होता है तो सॉइल never can be steel. So there is one more relation between Vs, Vt and E. तो Vs क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. Vt क्या है? टोटल वॉल्यूम. एंड E क्या है? वॉइड रेशियो है. तो Vs इज इक्वल टू होता है Vt अपॉन 1 प्लस E. तो ये कैसे आया इसको हम देखते हैं. तो हमको पता है E इज इक्वल टू है Vv वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. अब इसमें हम क्या करेंगे, बोथ साइड हम प्लस 1 कर देंगे. प्लस 1. तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस ई इज इक्वल टू वी वी प्लस वी एस अपॉन वी एस. ये हो गया. अब हमको पता है टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. तो इसको हम इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे? 1 प्लस ई इज इक्वल टू वी टी अपॉन वी एस. तो Vs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Vs विल भी हो जाएगा टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस ई. ऐसे ये रिलेशन हमने ड्राइव किया है. ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप लोग इसको याद रखिएगा. इसके अलावा क्या होता है, फाइन ग्रेन सॉइल का जो टोटल वॉल्यूम होता है और void is more than coarse grained soil due to more number of voids. अब हम देखते हैं, एक ये इसमें ये हमारा फाइन ग्रेन सॉइल है और ये हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल है. तो कोर्स ग्रेन सॉइल में जो इनका void होगा वो तो बड़ा होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो टोटल voids निकलेंगे वो इससे, ये फाइन ग्रेन सॉइल से कम निकलते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वॉइड्स जो होते हैं वह नंबर ऑफ वॉइड्स किसमें? इसमें फाइन ग्रेन सॉइल में ज्यादा होते हैं. हमारी नेक्स्ट टर्म है porosity. So what is porosity? It is the ratio of the volume of void to the total volume. So porosity क्या होती है? सॉइल सॉलिड में, सॉइल मास में जो वॉल्यूम ऑफ void है और टोटल वॉल्यूम है. वॉल्यूम ऑफ void क्या क्या होते हैं? वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर. ये इनका टोटल वॉल्यूम से जो रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं? पोरोसिटी कहते हैं. और पोरोसिटी की वैल्यू जो है वो 0 से 100 के बीच में होती है. अब हमको देखना है कि पोरोसिटी की वैल्यू 0 क्यों नहीं होती है. अगर हम देखते हैं इफ n इज इक्वल टू 100%, तो ये क्या सिग्निफिकेंस देता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर टोटल वॉल्यूम है. तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना. सॉइल मास में वॉइड कैन नेवर बी 0, ये हमको पता है. तो ये सॉइल मास में ये चीज पॉसिबल नहीं है. अब देन 0 क्या होगा? 0 की सेम कंडीशन, वॉइड 0 नहीं होगा, इसलिए इसका पोरोसिटी 0 नहीं हो सकता है. अब उधर पे एक रिलेशनशिप दिया है n इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई. ये कैसे आया? n हमको पता है क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम होता है. तो हमने क्या लिख दिया? n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. टोटल वॉल्यूम को हमने इस टर्म में लिख दिया. यहां से हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वॉइड को कॉमन निकाल लेंगे. वॉल्यूम ऑफ वॉइड को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा? 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इधर पे Vs अपॉन Vv हो जाएगा. सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई ई. बिकॉज क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है? वॉइड रेशियो होता है.
तो इधर से हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हमको क्या मिल जाएगा, n इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई, ऐसे ये रिलेशन आता है। अब सेकंड रिलेशन हमारा क्या है, E इज इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस n। ये कैसे आया, हमने देखा है कि n इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई ई, ये हमारा अभी हमने देखा, यहाँ से ये निकाला था। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको स्टर्म में लिख देंगे, 1 प्लस 1 अपॉन ई इज इक्वल टू 1 बाई एन, ये होगा। तो हमारा 1 बाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एन माइनस 1। अगेन क्या हो जाएगा, इसको जब निकालेंगे हम तो आ जाएगा 1 माइनस एन अपॉन एन इज इक्वल टू 1 अपॉन ई। तो इसको हम कर देंगे E इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन। ये दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखना है, ये आगे सॉइल मैकेनिक्स में यूज होंगे। Both void ratio and porosity represent volume of voids in given soil mass, but void ratio is more significant. Why? Because it represents volume of voids to the volume of solid. तो solid volume of solid क्या होते हैं, चेंज नहीं होते, लेकिन volume of void चेंज होता रहता है। इसलिए क्या है, जो void ratio है वह more stable माना जाता है as compared to porosity। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो जो सॉइल मास में वॉइड्स प्रेजेंट हैं उसमें कितना वाटर अवेलेबल है, ये उसका परसेंटेज बताता है। जो रेंज होती है डिग्री ऑफ सैचुरेशन की रेंज जो हमारे पास होती है वो कितना, 0 से 100%, 0 भी हो सकती है 100% भी हो सकती है। डिपेंडिंग अपॉन डिग्री ऑफ सैचुरेशन सॉइल में बी क्लासिफाइड एज ह्यूमिड, डैम्प, मॉइस्ट एंड वेट। अब हम देखते हैं ये कैसे डिसाइड करते हैं। आपको मैं एक ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सॉरी, ये आप देखिए, इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं हम, इसके बीच में इधर पे आ जाएगा हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये वाला, इधर पे हमारा आ जाएगा वाटर, तो इधर पे ये इस टाइप से ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये डिफरेंट डिग्री ऑफ सैचुरेशन और ये वाटर कंटेंट होंगे। ये इधर आप देखेंगे, ये हो गया W1, ये हो गया W2, ये हो गया W3, ये हो गया W4। अब इधर पे हम क्या करेंगे, इधर पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, वाटर कंटेंट कुछ है। अब इधर पे हमने कुछ वाटर ऐड किया, इधर पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमको, डिग्री ऑफ सैचुरेशन आया 0.25, और आगे बढ़े अप साइड पे 0.50, देन 0.75 and 1. These are degree of saturation's value. So remember, when the value of degree of saturation between 0 to 0.25, the soil will be termed as humid saturated. Humid. If the value of degree of saturation between 0.25 to 0.50, it will be termed as damp. If degree of saturation is between 0.5 to 0.75, it will be moist. If degree of saturation between 0.75 to 1, it will be wet. So 1 represent fully saturated soil. Fully saturated soil, degree of saturation 1 or 100%, ये तो soil will be fully saturated. If value of degree of saturation is 0, then soil will be fully dry.
in between wet and dry, in between saturated to dry condition, all are termed as partial saturated soil. Partial saturated soil. So this is the graph. So our next term is air content. It is the ratio of volume of air to the volume of void. So AC is equal to क्या है VA upon VB and range of AC will be 0 to 100%. 0 से 100% के बीच में कुछ भी हो सकती है. तो ये नॉर्मली एक फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा. एंड देयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन S एंड AC. S क्या है डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड AC क्या है एयर कंटेंट है. तो S plus AC is equal to 1. This is the important formula. So I can describe it how it comes. So we know AC is equal to VA volume of air to the volume of void. तो पता है, इधर हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ void क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर. I have elaborated it in phase diagram. What is volume of void? So volume of void will be volume of water plus volume of air. Here we will put this. So volume of air will be क्या हो जाएगा, volume of void minus volume of water upon volume of void. इसको कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड. तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. 1 माइनस ये किसकी वैल्यू है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड. किसका रेशियो होता है, ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है. और ये क्या देख रहे हैं हम, AC देख रहे हैं. तो क्या हो जाएगा, S प्लस AC इज इक्वल टू 1. ऐसे ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है. नेक्स्ट टर्म इज परसेंटेज एयर वॉइड. इट इज डिनोटेड बाय eta A. दिस इज eta A. So it is the ratio of volume of air to the total volume of soil. So eta A is equal to VA upon VT, or and range of eta A can be, it can be 0 or greater than 0 but less than 100. So इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से 100 तक हो सकती है. 100 इंक्लूड नहीं होगी, 100 वैल्यू नहीं हो सकती. क्यों, क्योंकि ये टोटल वॉल्यूम के रेफरेंस में है. वॉल्यूम ऑफ एयर और टोटल वॉल्यूम के रेफरेंस में है, तो इट कैन नॉट बी 0. सो एंड वी कैन सी देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन eta A एंड N एंड AC. eta A क्या है, परसेंटेज एयर वॉइड है. N क्या है, पोरोसिटी है. AC क्या है, एयर कंटेंट है. तो ये कैसे आया है, इधर हम देखते हैं. eta A इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम है. तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इसको हमको सॉल्व करना है तो हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे. अगर बोथ से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन चेंज नहीं होती है. इसको वॉल्यूम ऑफ एयर बाई वॉल्यूम ऑफ void into volume of void to the total volume. तो वॉल्यूम ऑफ एयर बाई वॉल्यूम ऑफ void क्या होता है, एयर कंटेंट. एंड वॉल्यूम ऑफ void टू द टोटल वॉल्यूम क्या होता है, पोरोसिटी. एंड ये क्या हो गया, eta A. तो ऐसे ये रिलेशन आया. Now we have covered the basic definitions which will be required in further syllabus. So now we will move on to index property of soil. First one is water content. What is water content? It is the ratio of weight of water to the weight of solid present in the given soil mass. So it is denoted by small w. So weight of water to the weight of solid into 100 is denoted in percentage. So range of water content is equal to or greater than 0%. तो वाटर कंटेंट हमेशा क्या होगा, 0 या इससे ज्यादा होगा. There is a relation between water content, total weight and weight of solid. So weight of solid is given as total weight upon 1 plus W. Here क्या है, ये small w means water content.
सो ये कैसे आया ये वाला रिलेशनशिप देखते हैं हम। तो हमको क्या पता है यहाँ पे स्मॉल w मतलब वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ solid. So we will add 1 both side. 1 plus W is equal to WS plus WW upon WS. Weight of solid, weight of water, weight of solid. तो weight of solid plus weight of water will be total weight. टोटल वेट क्यों? क्योंकि एयर का कोई भी वेट नहीं होता है, इसलिए वेट ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ वाटर मिलके टोटल वेट बना देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस W इज इक्वल टू टोटल वेट अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ सॉलिड यहाँ से टोटल वेट अपॉन 1 प्लस W। ये स्मॉल w वाटर कंटेंट है, तो ये ऐसे हमारा ये रिलेशनशिप आ गया सॉलिड वेट में और टोटल वेट में। There are several methods to determine water content of soil. So first one is oven drying method. This is important method. Question has been asked from this method. So we will see what is this method. This is usual standard laboratory method in which soil is dried in an oven at 105 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. This is the most accurate method. तो क्या होता है इस मेथड में एक ओवन होता है जिसमें हम सॉइल सैंपल लेते हैं। उस सॉइल सैंपल को 105 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको गर्म करते हैं। तो उसको गर्म करने पे क्या होता है, उसमें जो मॉइस्चर है वो एवोपरेट हो जाता है, तो सॉइल ड्राई हो जाती है। ऐसे ये प्रोसेस होता है। अब इसके प्रोसीजर के देख लेते हैं क्या होता है। एक एम्प्टी वेट एक कंटेनर होता है जिसका वेट W1 होगा, उसको हम वेट ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड आई पुट द फिगर, सो वी विल ट्राई टू conclude from that. So you can see here, this is the empty container. Empty container, dry and empty container. We will take the weight of this container and marked as W1, and then there is second container. In that second container, we will put our sample, which is moist sample. It will contain all solid, water, air. So air, there is no weight, so water and soil. So this will be W2. फिर हम क्या करेंगे, इसको ओवन पे रखेंगे T डिग्री सेल्सियस। T डिग्री सेल्सियस मीन्स 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस पे टाइम के लिए, किसी टाइम के लिए जो कि डिक्लेयर होगा। उसके बाद उस टाइम के बाद उसको निकालेंगे और उस कंटेनर के साथ उसका वेट हम ले लेंगे ड्राई सैंपल का W3। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा वाटर कंटेंट का फॉर्मूला बनेगा। तो वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। अब इससे हमको पता चलेगा वेट ऑफ वाटर क्या होगा। वेट ऑफ वाटर ड्राई सैंपल में से ये कंटेनर जो मॉइस्ट सैंपल का वेट है W2 में से हम W3 को माइनस कर देंगे। तो इसमें हमको क्या है, ओनली वाटर का वेट मिल जाएगा। फिगर से भी क्लियर है कि ये सॉलिड कैंसिल आउट, कंटेनर कैंसिल, देन वी विल गेट द वाटर वेट अपॉन weight of solid. Now weight of solid, how? W3 dry sample, then empty container, so W3 minus W1, so we will get water content and 200 it will be denoted in percentage. So while performing oven drying method, we should remember some point. For inorganic soil, temperature should be 105 degree Celsius to 110 degree Celsius for 24 hours. अब ऐसा क्यों है कि हम 110 पे ही क्यों हम लास्ट लिमिट रखे हुए हैं, क्योंकि अगर हम 110 के आगे जाएंगे तो सॉइल का जो स्ट्रक्चरल वाटर है वो उसका लॉस हो जाएगा। तो किसी भी कंडीशन में सॉइल का स्ट्रक्चरल वाटर लॉस नहीं होना चाहिए।
इसलिए हम इसको 110 से आगे नहीं ड्राई करेंगे। ऑर्गेनिक सॉइल के लिए ये टेम्परेचर शुड नॉट बी बियॉन्ड शुड नॉट गो बियॉन्ड 60 डिग्री सेल्सियस। क्यों ऑर्गेनिक सॉइल में 60 डिग्री सेल्सियस क्यों? अगर ऑर्गेनिक सॉइल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सॉइल में, तो 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाएगा तो वो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, जो कि परमिसिबल नहीं है while performing the test. For soil containing gypsum, temperature should not be beyond 80 degrees Celsius. Reason for that is loss of structural water. इसके लिए जिप्सम सॉइल के लिए स्ट्रक्चरल वाटर लॉस होता है 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, इसलिए ये लिमिट है। इन नो केस टेम्परेचर शुड टू इंक्रीज्ड बियॉन्ड 110 डिग्री सेल्सियस। ये मैं पहले बताया कि इतना ही इसका रहना है। सॉइल में क्या है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वाटर: structural water, adsorbed water, capillary water, and gravity or free water. While performing the test, all water except structural water get lost. Adsorbed water, capillary water, and gravity water will be lost, but structural water remain. स्ट्रक्चरल वाटर क्या होता है, जैसे हम एक फिगर दिखाता हूँ आपको। ये आप मान के चलिए ये सॉइल पार्टिकल है, ये सॉइल के ये 2 पार्टिकल है, ये सिंगल पार्टिकल हुआ, ये the structural water is present between these particles. It is important in soil solid. That's why we avoid to get temperature beyond 110 degrees Celsius, so that this structural water remain in soil solids. Next method to determine water content is sand bath. It is the field method requiring only about 1 hour's drying period. A sand bath, a basin containing about 50 mm thick and sand layer, is heated over a gas burner or stove. Wet soil sample kept in a container is placed on the sand and heated until dry. The sand is stirred with a palette knife during heating to assess drying. This method is not used for organic soil and for soil containing gypsum. क्या होता है, ये सेम काइंड ऑफ मेथड है, बट ये इनएक्यूरेट मेथड होती है। इससे जो रिजल्ट ऑब्टेन होते हैं वो इनएक्यूरेट होते हैं। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो कंट्रोल ओवर टेम्परेचर। दैट्स व्हाई दिस सॉइल इज नॉट feasible to use in case of organic soil or soil containing gypsum. क्या होता है, एक लैंप होगा लाइक दैट, उसके ऊपर एक ये सैंड बाथ होती है, इसमें हम ये सॉइल का सैंपल रखते हैं और उसको हीट करते हैं। हीट करने पे क्या है उसका जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर लॉस्ट हो जाता है, मॉइस्चर इसका एवोपरेट हो जाएगा या लॉस्ट हो जाएगा। उसमें क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला है W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस W1। W1 क्या हो जाएगा, एम्प्टी कंटेनर का वेट। W2 क्या हो जाएगा, मॉइस्ट सैंपल रख के उसका वेट लेंगे, मॉइस्ट सैंपल के साथ उसका वेट लेंगे। W3 क्या हो जाएगा, ड्राई सैंपल का वेट लेंगे, ड्राई सैंपल का वेट लेंगे। तो मॉइस्ट में से ड्राई को माइनस करेंगे, उधर पे हमको वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, और फिर ड्राई सैंपल में से एम्प्टी कंटेनर का माइनस करेंगे तो हमको उसमें वेट ऑफ सॉलिड आ जाएगा। तो ऐसे ये वाटर कंटेंट से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज अल्कोहल मेथड. In this method, methylated spirit is added to sample in order to increase rate of evaporation during drying. क्या होता है इस मेथड में, एक हम सॉइल सैंपल लेते हैं, सॉइल सैंपल को एक एवोपरेटिंग डिस्क होती है उस डिस्क के ऊपर रखते हैं, क्योंकि large lumps may be there, maybe large lumps available there, so we have to
broke them or crumbled them with the help of palette knife. पैलेट नाइफ एक टूल होता है, आप गूगल करेंगे तो पता चलेगा, उसको उसके हेल्प से हम उसको लम्प्स को ब्रेक करते हैं। फिर वेट सैंपल का वेट कर लेते हैं, जो कि W2 होगा, वो फॉर्मूला है सेम। इस सॉइल सैंपल को वी विल मिक्स विथ मिथाइलेटेड स्प्रिट। मिथाइलेटेड स्प्रिट को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एल्कोहल। मिथाइलेटेड स्प्रिट को ही हम एल्कोहल बोलते हैं। अब इसकी क्वांटिटी कितना होना चाहिए? तो इसका मिथाइलेटेड स्प्रिट का 1 ml इज फॉर every gram of soil. This is the quantity of methylated spirit. So after mixing that methylated spirit, we will ignite that sample. During ignition, alcohol and soil should be turned several times with a palette knife to make uniform mix. After complete burning of alcohol, it should be cooled down. Within 10 minutes it will be cool, and we can get immediate water content by weighing the dry sample. This method is extremely volatile. Care should be taken care, because methylated spirit is dangerous while handling it. So this is the alcohol method. Next method is calcium carbide method. It is also called as moisture meter test. This test is based on the gas pressure developed by the reaction of calcium carbide with moisture of soil. तो ये इधर एक इक्वेशन है CaCa2। CaCa2 क्या होता है? ये होता है कैल्शियम कार्बाइड। जब कैल्शियम कार्बाइड सॉइल में अवेलेबल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये C2H2 क्या होता है? एसिटिलीन गैस है। एसिटिलीन गैस को रिलीज करता है और कैल्शियम हाइड्राइड को करता है। ये एसिटिलीन हाईली रिएक्टिव होती है। ये जो मीटर होता है इसमें गेज फिक्स होता है जो कि कैलिब्रेटेड होता है। उसका गेज प्रेशर वैल्यू जो होती है वो डायरेक्टली वाटर कंटेंट से कैलिब्रेटेड होती है। तो वी कैन गेट द वाटर कंटेंट as per the pressure applied on the meter by the acetylene gas. So क्या ये प्रोसीजर, ये मेन कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको। सो ये प्रोसीजर क्या है? वेट सॉइल इज प्लेस्ड इन द कप holding the moisture meter horizontally. Cup and chamber is brought together. The meter is shaken for about 15 and 20 seconds, and it will start releasing the acetylene gas, and that will give a gauge pressure in terms of water content. So we can easily find water content. It is a very quick method usually used at the field to get water content value immediately. Next method is radiation method. It is the field method. Two steel casings are lowered into medium. In first casing, radioactive material cobalt-60, and in another casing, detector is placed. So क्या होता है इस मेथड में? दो होल बनाए जाते हैं, ग्राउंड में डिक किए जाते हैं, उसमें स्टील की केसिंग डाली जाती है। ये आप देखेंगे, ये जो है स्टील केसिंग है, ये बोथ साइड स्टील केसिंग है। एक केसिंग में हम ऊपर से ये कोबाल्ट 60, मतलब ये रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल इसको हम लोअर करते हैं, और ये केसिंग का क्या है? एक साइड पे ये ओपनिंग होती है, ये वन साइड ओपनिंग होती है। अनदर केसिंग में अदर साइड पे ओपनिंग होगी है, और इसमें हम क्या करते हैं? एक डिटेक्टर प्लेस करते हैं। इसको कोबाल्ट 60 नीचे जाके क्या होता है? It start emitting neutrons by the radioactive material. So hydrogen atom, this is H2O in soil, ये हाइड्रोजन एटम है। तो इसका जो हाइड्रोजन एटम है ये रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो न्यूट्रॉन एमिट हो रहे हैं उससे रिएक्ट करता है और स्कैटर होता है। तो इसमें क्या होता है? कुछ ये न्यूट्रॉन जो इधर से इधर जा रहा है, तो इसमें क्या होता है? एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी लॉस होता है which is detected by this detector. So
energy loss in neutron is directly proportional to water content of soil. जितना ज्यादा वाटर होगा उतनी ज्यादा एनर्जी लॉस्ट होगी न्यूट्रॉन की यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल करने में। तो ये डिटेक्टर में ये जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है ये कैलिब्रेटेड होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर कंटेंट, so we can directly get the water content of this soil mass, how much water content is available. But as radio material active is using in this process, so there should be proper protection, shielding should be used, because it can create the health issue for the persons. So proper care should be taken care while performing the radiation method. Sixth method is torsion valence method. In this method, infrared rays are used to dry the soil sample. Rays are generated through 250 watt bulb. इसमें क्या होता है, ये पूरा एक यहाँ पे हम बल्ब लगा के रखते हैं, उसके सामने ये सैंपल के लिए एक बॉक्स होता है, इसमें हम अपना मॉइस्ट सैंपल रख देते हैं। इस बल्ब से बल्ब को ऑन करते हैं, बल्ब को ऑन करने पे इससे इंफ्रारेड रेज जनरेट होती हैं। ये रेज जनरेट होके इस सैंपल को ड्राई करती हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ड्राइंग एंड वेइंग इज डन साइमल्टेनियसली। ये सैंपल की वेट करना और इसकी ड्राइंग प्रोसेस दोनों एक साथ ही चलती रहती है। इसलिए इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर दोज सॉइल विच quickly absorb the moisture from atmosphere, like fine clay. Fine clay क्या होता है, ये quickly absorb करती है moisture environment से, इसलिए इस टाइप की सॉइल के लिए ये सुटेबल होती है, क्योंकि इसमें continuously drying and weighing process होती है। So seventh method, Pycnometer method. This is the most important method. In exams they can frame the descriptive type of question from this method also, so please understand carefully. Pycnometer method, it is a quick method, gives a result in 15 to 20 minutes, used for those soil whose specific gravity is known. Pycnometer is 900 milliliter flask having conical top of 6 mm diameter, circular hole at its center for the removal of air. तो पिक्नोमीटर क्या होती है, इसको ये जार जो है इसको हम पिक्नोमीटर बोलते हैं। इसका टोटल जो वॉल्यूम होता है वो 900 मिलीलीटर के अप्रॉक्स होता है, और इसका ये कोनिकल शेप होता है, टॉप होता है, इसका क्या होता है 6 mm डाया होता है। तो इससे हमको क्या है, वाटर कंटेंट पता करने के लिए, जिस भी सॉइल सैंपल का हम वाटर कंटेंट हमको पता करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड बी नोन। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, फर्स्ट वी विल टेक एम्प्टी पिक्नोमीटर, दिस एम्प्टी पिक्नोमीटर, एंड टेक वेट ऑफ दैट पिक्नोमीटर, दिस विल बी कॉल्ड W1. Then we will fill the moist sample in this pycnometer and taken the weight, that will be called W2. Now you can see there is a remaining portion, that is the empty portion. In that empty portion we will fill the water till its top. इसके टॉप तक हम क्या है पूरा वाटर से इसको फिल कर देंगे, और उसके बाद फिर इसका पिक्नोमीटर का हम वेट ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा W3 हो जाएगा। और फिर इसको पूरा रिमूव करके सभी कुछ, इसका क्या है, हम इसमें पूरा वाटर नीचे से ऊपर पूरा 900 ml का पूरा वाटर फिल करके इसका वेट ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा W4 हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है वाटर कंटेंट का, W2 minus W1 upon W3 minus W4 into G minus 1 upon G minus 1 into 100। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है।
ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसको याद कैसे करेंगे, इतना सारा W है, कैसे आपको, तो इसको आप याद रखिए, इधर से जो W स्टार्ट होगा आपको एंटी क्लॉकवाइज इसको बढ़ाते हुए जाना है और बीच में माइनस साइन पुट करना है। W1, W2, W3, this W1, W2, W3 and W4, then multiplied by G minus 1 by G minus 1 into 100. This is the formula for water content from the Pycnometer. Thank you everyone for watching this video. I hope this lecture will be useful for all of you. If I cover more topics, video will become much lengthy, so I am preparing this video in parts. So in next lecture, I will try to cover unit weight, specific gravity, consistency, etc. And many more useful formulas are there. In upcoming lecture, I will also cover previous year questions related to these topics. If you find this video useful, please like and subscribe our channel and share with your friends. And if you have any suggestion or feedback, please give it in the comment section. Thank you everyone.